Good morning, my dear students. Welcome to Parth Online Tutorials. In today's class, we're going to start our next chapter, that is our environment, of a theme called natural resources. Natural resources is a theme, and this theme has a two chapter named our environment and food resources. Food resources is already deducted by the CBSE new syllabus, so we do not going to start this chapter food resource, but we definitely do our environment as per the new syllabus. This chapter is used to give internal marks to the students. Yes, this chapter will be used as an internal assessment parameters. Yes, but our responsibility is to learn or study this chapter also. Okay, so we're going to start this chapter. Let's start. As the name suggests, our environment means हमारा वातावरण, our environment, our surroundings. ठीक है, इनको इस चैप्टर में स्टडी करना है. एंड द थीम ऑफ चैप्टर इज नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दे आर द रिसोर्सेज विच आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज एंड दैट आर वैल्यूएबल टू यू, that are valuable to us are called natural resources, and it is of two types: renewable and non-renewable resources. Natural resources are the naturally occurring substance which are valuable to us, and it is of two types: renewable and non-renewable. You are very much familiar to these two words, renewable and non-renewable. ठीक है, renewable resources are those resources which are regenerating again and again, or you can say which are present in the abundant quantity in our atmosphere, in our environment. Example: sun energy, water energy, tidal energy, wind energy. These are the renewable resources. These are the new resources. These are the new technology. So we can say renewable sources are the non-conventional resources. Non-conventional यानी जो पुरानी नहीं है, non-conventional. नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल. दीज आर द रिसोर्सेज विच आर नॉट रीजनरेटिंग अगेन एंड विच आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटी इन आवर एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल fossil fuels, coal, petroleum, natural gas. These are the non-renewable resources, or you can say conventional resources. Means बहुत ही पुराने हैं, पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं. ठीक है, कन्वेंशनल जो कल्चरल है, हमारे कल्चर के साथ चलते आए हैं. ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, ये चैप्टर एक जनरल अवेयरनेस का चैप्टर है. इसमें बायोलॉजी का कंटेंट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा. यस, ये एक जनरल अवेयरनेस का चैप्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज, और यू कैन से आवर एनवायरमेंट. ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं आवर एनवायरमेंट, हमारा सराउंडिंग्स. आवर एनवायरमेंट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स. कई सारे इसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं. उन कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस करना है. सो आई सिलेक्टेड three components of our environment. Number one, air. Air is a important component of our environment. Rain or water, soil. These three main components of our environment. Definitely we are going to study or discuss these components. Next, the fourth is the biogeochemical cycle. Some cycles are also present in our environment, like oxygen cycle, nitrogen cycles. Nitrogen cycles you already have studied in the 8th class. सेम टू सेम एग्जैक्ट बिल्कुल वही साइकिल यहां पर भी आने वाली है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, नाइट्रोजन साइकिल. तो साइकिल्स भी हैं, जैसे कि वाटर साइकिल है, रेन साइकिल है. आप एसएसटी में पढ़ते आए हो कि रेन साइकिल्स होती हैं. क्लाउड से रेन आता है, फिर दोबारा वेपोराइजेशन होकर क्लाउड्स में चला जाता है. ये सब साइकिल्स हैं जो कॉन्टिन्यू वन एंड अगेन चलती रहती हैं. तो इनको भी स्टडी करना है इस चैप्टर में. ठीक है, आवर एनवायरमेंट में क्या करने वाले हैं? हम एयर, वाटर, सोयल और बायोजियोकेमिकल्स को स्टडी करने वाले हैं. जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कौन सा है? वो है एयर. एयर क्या है? व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. अगर हमें एयर को स्टडी करना है तो हमें स्टडी करना होगा उसकी कॉम्पोजिशन को, कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में कौन कौन सी गैसेस है. हमें स्टडी करना होगा एटमॉस्फेयर को. एटमॉस्फेयर, वी हैव टू स्टडी द फंक्शन ऑफ एयर.
Next we have to study the movement of air, and the last is the pollution of air pollution. These are the main subtopics of the first component of environment, that is air. हवा, air is a mixture of gases. कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि एयर अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो वो गैसेस कौन कौन सी हैं। अगर हमें उन गैसेस की परसेंटेज पता चल जाए या वो गैसेस कौन सी है, तो हमें कॉम्पोजिशन ऑफ एयर को समझने में काफी आसानी होगी कि एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर मिसलेनियस गैसेस। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर रेस्ट ऑफ द मटेरियल ऑफ अदर गैसेस। तो मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है? नाइट्रोजन गैस की है। हमारे चारों तरफ हमारे एनवायरनमेंट में जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। और मिक्सचर ऑफ गैस की बात करें तो उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबकी सब गैसेस हैं, बट जो मैक्सिमम परसेंटेज है एयर में वो किसकी है? नाइट्रोजन की है। वो कितना है? 78% है। ठीक है, बट हमें सरवाइव करने के लिए कौन सी गैस चाहिए? दैट इज ऑक्सीजन, और उसकी परसेंटेज 21% है। और डे बाय डे ये भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि हम फॉरेस्ट्रेशन नहीं करते हैं, हम न्यू प्लांट जर्मिनेट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई दिस परसेंटेज इज आल्सो डिक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू डिफॉरेस्ट्रेशन। हम पेड़ को, हम ट्रीज को कट करते जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ गैस, और यू कैन से मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं? एयर। सो दिस इज एयर। हाउ इट इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट? इट इज प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ लेयर्स, एंड द नंबर ऑफ लेयर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द नंबर ऑफ लेयर ऑफ गैसेस around the earth and that is retained by the gravity of earth in the form of concentric rings. concentric rings क्या होती हैं? एक रिंग के अंदर दूसरी रिंग, दूसरी के अंदर तीसरी रिंग, एक रिंग के अंदर कई सारे रिंग्स होते हैं, उसको concentric rings बोलते हैं। क्या बोलते हैं? concentric rings। ठीक है, so what is atmosphere? Atmosphere is a layer of gases that is present in the form of concentric rings around the earth. What is this? Earth. Around the earth. earth के चारों तरफ rings की फॉर्म में प्रेजेंट है layers। किसकी? गैसेस की। और कौन सी गैसेस? एयर। मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर, यानी एयर प्रेजेंट है आपके अर्थ के चारों। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, तो अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट क्या है? गैसेस, एयर प्रेजेंट है। और वो किसकी फॉर्म में है? लेयर्स की फॉर्म में। पहले एक लेयर है एयर की, उसके ऊपर फिर एक और लेयर प्रेजेंट है एयर की, और ऐसी कई सारी लेयर्स हैं। ठीक है, उसको हमें डिस्कस करना है। और ये लेयर्स यूनिवर्स में क्यों नहीं चली जाती? वो अर्थ के पास ही क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी ने आपकी गैसेस को भी अट्रैक्ट किया हुआ है, सिर्फ आपको ही अट्रैक्ट नहीं किया हुआ, आपकी ग्रेविटी ने आपकी जो अर्थ की लेयर्स हैं गैसेस की, एटमॉस्फेयर की, उनको भी अट्रैक्ट किया हुआ है। एक एस्टिमेशन है कि जो गैसेस है, एयर का कितना वेट है? एयर का जो वेट है दैट इज 5000 to 8000 बिलियन टन। दिस इज द एस्टिमेटेड वेट ऑफ एयर। बहुत ज्यादा वेट है, आपके ऊपर है इतना वेट। ठीक है ना, और देखा जाए इसको अगर हाफ कर दें हम, 5000 से 8000 का जो हाफ है, हाफ वेट, वो सिर्फ 4 to 8 किलोमीटर के रीजन के अंदर ही प्रेजेंट है। यानी अर्थ के ऊपर का जो, हमारे ऊपर का जो 4 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक का जो एरिया है, उसमें ही प्रेजेंट है इसका हाफ पोर्शन। इतना ज्यादा वेट है कम रीजन में। ठीक है, सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ गैसेस अराउंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा इसी एटमॉस्फेयर के बारे में एक्सप्लेन करता हूं रब करने के बाद। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इफ दिस इज अ अर्थ, if this is a earth, then the surrounding layer of gases around the earth, surrounding layers,
इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, यानी रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। मैं इसको कंप्लीट भी कर सकता हूं, बट मैं अभी सिर्फ आपको इतना हाफ ही करके दिखा रहा हूं, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, यानी जो एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। जो फर्स्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। जो नेक्स्ट रिंग है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपर लेयर प्रेजेंट होती है एक्सोस्फेयर। उसके बाहर यूनिवर्स, उसके बाहर यूनिवर्स। जैसे जैसे लेयर यूनिवर्स की तरफ बढ़ती है, लेयर बाय लेयर वो पतली होती रहती है, थिन होती रहती है, और जो उसकी थिननेस है वो ग्रेजुअली है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं हम, इट राइजेस अबव, उसकी जो यूनिवर्स की तरफ उसकी जो लेयर्स की थिननेस है वो कम होती रहती है, ठीक है। और कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है यूनिवर्स और अर्थ के बीच में, अर्थ एटमॉस्फेयर के बीच में, अर्थ एटमॉस्फेयर और यूनिवर्स के बीच में कोई एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं है। क्या आप बोल सकते हो कि यस, हाँ, इसके ऊपर कट हो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसके ऊपर कट हो जाएगा और यहां से यूनिवर्स स्टार्ट है, बिल्कुल थिन होता है, कोई एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं है। यहां पर भी कुछ पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे आपको एटमॉस्फेयर के। तो ये तो मैंने रिंग्स की फॉर्म में बनाया है। अगर मुझे इसको चार्ट की फॉर्म में बनाना हो तो मेरे पास प्रेजेंट है यहां पर, मैंने इसको चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। जो आप ये वाई एक्सिस देख रहे हो, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है किसका? एटमॉस्फेरिक लेयर का फ्रॉम अर्थ, अर्थ से, ठीक है। और जो यहां पर आप देख रहे हो ये लेयर्स हैं, ये वाले लेयर्स जो मैंने यहां पर बनाई थी उनको मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया, बट उसको मैंने गोल नहीं किया, सीधा कर लिया, बस इतना सा डिफरेंस है। मैंने उनको स्फीयर की फॉर्म में नहीं किया जैसे यहां पर किया था, बट उनको सीधा कर लिया जिससे समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट लेयर जो है, और व्हाट इज दिस? सबसे जो नीचे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या है? अर्थ। दिस इज अर्थ टॉप सरफेस, अर्थ की टॉप सरफेस, अर्थ की टॉप सरफेस 0 किलोमीटर पे, यानी वो तो अर्थ की सरफेस से कितना दूर है? कुछ भी नहीं, अर्थ की सरफेस तो अर्थ की सरफेस के ऊपर ही होगी, तो 0 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर जो सबसे पहली लेयर है जो अर्थ सरफेस को टच करती है, उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, और उसका डिस्टेंस है 0 to 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर के रीजन के अंदर जो पहली आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। और ये वो रीजन है जिसके अंदर आपके क्लाउड्स होते हैं, जो आपको बादल दिखाई देते हैं वो इसी रीजन में दिखाई देते हैं। आपको मैक्सिमम इतने ही दूर दिखाई देता है जितने आप क्लाउड्स देख सकते हैं, यानी हम ट्रोपोस्फेयर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये वही रीजन है जिसमें आपके माउंटेन्स और हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। इन दिस लेयर, इस लेयर की स्पेशलिटी क्या है? इस लेयर की स्पेशलिटी ये है कि जैसे ही हम ऊपर जाते रहते हैं, इसमें और ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, तो हमारा टेम्परेचर कम होता रहता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस। दिस इज द ऑल्टीट्यूड, यानी हाइट। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती रहती है ट्रोपोस्फेयर में, टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, ठंडा होता रहता है और ज्यादा। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर बिगिंस फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर के रीजन के अंदर जो लेयर प्रेजेंट है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ज्यादा टेम्परेचर वेरी नहीं करता जैसे कि आपके ट्रोपोस्फेयर में कर रहा था, लेकिन ये आइडियल प्लेस है सुपरसोनिक जेट्स के लिए। सुपरसोनिक जेट, सुपरसोनिक यानी जो आपके फाइटर जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, इंडियन एयरफोर्स के जो जेट्स होते हैं वो इसी रीजन में ट्रेवल करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा वेरी नहीं करता। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके अंदर कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक ऐसी लेयर होती है जो आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से सेव करती है, एंड द नेम ऑफ दैट लेयर इज ओजोन लेयर। कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, गॉट इट। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर एंड इट एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर तक की जो रेंज है वहां पर मेसोस्फेयर प्रेजेंट होती है। मेसोस्फेयर की स्पेशलिटी की बात करते हैं तो यहां पर भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है एज वी गो
और यू कैन से एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजिंग, अगर ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, अगर हम ऊपर जाते रहेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, जस्ट लाइक द ट्रोपोस्फेयर, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर में था। और यहां पर ये वो प्लेस है जहां पर हॉट एयर बैलून्स उड़ते हैं। हॉट एयर बैलून्स का जो प्लेस है वो यही है, एविएशन का भी यही पे। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द दीज थ्री लेयर्स। As we increases our altitude in the thermosphere, temperature also increases. टेम्परेचर भी बढ़ता है जैसे जैसे हम थर्मोस्फेयर में और ऊपर जाते रहते हैं। जो एस्टेरॉइड्स, जो आपके यूनिवर्स से जो मेटेरॉइड्स आते हैं, जो पत्थर आते हैं मेटेरॉइड्स, वो इस रीजन में अगर आ जाए थर्मोस्फेयर में तो डोंट वरी, वो आपके ऊपर नहीं गिरेंगे। यहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वो मेटेरॉइड्स भी क्या हो जाएंगे, बर्न, जल जाएंगे। जो मेटेरॉइड जलते हैं उनके पार्टिकल्स वो इतने ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में कट हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन दिस रीजन, दिस इज द आइडियल प्लेस फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए जो आपकी वेव्स होती हैं, 4G वेव्स, 5G वेव्स, वो सब की सब इसी रीजन में ट्रेवल करती हैं। तो दिस इज द आइडियल प्लेस फॉर कम्युनिकेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। उसके बाद एक्सोस्फेयर की बात करते हैं, जो यूनिवर्स में भी बोल सकते हो आप और आपके एटमॉस्फेयर में बोल सकते हो। ये कोई एग्जैक्ट प्लेस नहीं है जिसको हम बोलेंगे कि यस अब यूनिवर्स स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ आवर atmosphere. So this is atmosphere. Now function of air, अभी हम एयर कर रहे हैं, एयर की कंपोजिशन हमने कर ली है, एटमॉस्फेयर हमने स्टडी कर लिया है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हमने स्टडी कर ली है। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट द फंक्शन ऑफ एयर, कि एयर के फंक्शंस क्या है, क्या होते हैं एयर के फंक्शंस, बताओ बेटा, सोचो। फंक्शंस ऑफ एयर, फर्स्ट फंक्शन ऑक्सीजन, इट गिव्स यू ऑक्सीजन। मिक्सचर ऑफ गैसेस है और गैसेस के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आपको ऑक्सीजन एयर की वजह से ही मिलती है। नंबर 2 डिस्पर्जल, डिस्पर्जल में हेल्प करता है। डिस्पर्जल में कैसे हेल्प करता है, जो प्लांट्स के फ्लावर्स के सीड्स होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर कौन लेके जाती है, वो एयर ही तो लेके जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें, ऑक्सीजन हो गया, डिस्पर्जल हो गया। प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन भी देती है। क्या एयर आपको प्रोटेक्ट करती है, क्या एटमॉस्फेयर आपको प्रोटेक्ट करता है? यस, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और डिस्कस करते हैं सबके सब पॉइंट्स आपके एयर के फंक्शंस है। हम इसको एयर के फंक्शन बोले या एटमॉस्फेयर की, एक ही बात है। ठीक है ना। और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है आपको, कम्युनिकेशन ड्यू टू थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में कम्युनिकेशन होती है। और डिस्कस करते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट कंट्रोल करता है। लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन मूवमेंट के लिए। मीडियम, क्या मीडियम है ट्रैवल करने का, अगर आपको एक सिटी से, एक कंट्री से यूएस से जाना है तब कैसे जाओगे, विद द हेल्प ऑफ मीडियम। कौन सा, एयर। ठीक है, जो आपके सुपरसोनिक जेट्स हैं, एविएशन कहां ट्रैवल करते हैं, मीडियम में ट्रैवल करते हैं, एटमॉस्फेयर ट्रैवल करते हैं। तो यह हमें मीडियम देता है लोकोमोशन का, यानी मूवमेंट का। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एयर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद नेक्स्ट अपना सब टॉपिक जो हमारे एयर से ही रिलेट करता है। लेट्स स्टार्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एयर जो कंपोनेंट्स है, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, उसके 2 सब टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। दैट इज composition, atmosphere of air. Number 2, function of air and atmosphere. Now we going to start the third subtopic of the same component, that is air, is movement of air. कि ठीक है, गैसेस आपके पास है, आपके चारों तरफ गैसेस है, लेकिन what will happen if the gas starts to move? What will happen? क्या होगा अगर उन गैसेस वो मूव करना शुरू कर देती हैं? तो उसको हम बोलते हैं हवा, विंड। विंड एंड एयर इज डिफरेंट, ये बात हमेशा याद रखनी है आपने कि एयर और विंड दोनों ही अलग अलग चीज है। एयर इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, आपको फील भी नहीं होती है, एयर आपको फील नहीं होती है। यू कैन फील ओनली द मूवमेंट ऑफ एयर, आपको सिर्फ एयर की मूवमेंट फील हो सकती है, बट यू कैन नॉट सी द एयर, यू कैन नॉट फील द एयर।
ठीक है, यू कैन ओनली फील द मूवमेंट ऑफ एयर एंड द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, उसको हम विंड बोलते हैं। ठीक है, ये विंड भी 3 टाइप्स की होती हैं। अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो, स्पीड बहुत ज्यादा हो, मूवमेंट होगी तो स्पीड होगी, और स्पीड अगर काफी ज्यादा हो, इफ इट इज ग्रेटर देन 120 किलोमीटर पर आवर, काफी स्पीड होती है ये। ठीक है, अगर इतना है तो उस विंड को हम बोलते हैं ह्यूरिकेन। क्या बोलते हैं? ह्यूरिकेन। If the speed of wind is between 60 to 90 किलोमीटर पर आवर, that wind is called storm. उस wind को हम क्या बोलेंगे? Storm. Storm. And if the speed is very low, very slow, between 10 to 20 किलोमीटर पर आवर, that type of wind is breeze. उसको हम क्या बोलते हैं? Breeze. जो आपके जो सी के किनारे हैं, कोस्टल एरियाज, समुद्र किनारे, वहां पर ऐसी हवा चलती है, उनको ब्रीज बोलते हैं, सी ब्रीज, जेंटल ब्रीज। ठीक है ना, ये सब आपकी विंड्स की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ विंड। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द मूवमेंट ऑफ एयर? उस हवा को चलाता कौन है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मैंने बोला मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। तो मूवमेंट लेके आता कौन है? कौन लेके आता है मूवमेंट? कोई ह्यूमन या कोई मशीन है जो उस एयर को धक्का देती है, फिर वो हिलना शुरू हो जाती है और फिर वो ह्यूरिकेन, स्टॉर्म और ब्रीज बनता है? नहीं। देयर आर 2 मेन फैक्टर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ एयर, and that 2 factors are number 1 differential heating of land and water, and number 2 formation of water vapors. इनकी वजह से एयर के अंदर मूवमेंट्स होती हैं जिसको हम विंड बोलते हैं। अगर ये फैक्टर्स ना हो तो एयर मूव नहीं करेगी, और एयर मूव नहीं करेगी तो आपकी अर्थ के ऊपर ना ब्रीज होगी, ना स्टॉर्म होगा, ना ह्यूरिकेन होगा, विंड ही नहीं होगी। If these factors are not present, but it is present, so we going to start these factors. Differential heating of land and water, ये क्या बोलता है? डिफरेंशियल यानी अलग अलग, जितने भी मैटर है आपके अर्थ के ऊपर, सबके साथ यही है कि सबका जो हीटिंग रेट है वो डिफरेंट है। कोई जल्दी गर्म हो जाता है, कोई धीरे धीरे गर्म होता है। अगर मैं लैंड और वाटर का ही एग्जांपल लूं तो जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी होती है। अगर गर्म हो गई है तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठंडी है जल्दी गर्म हो जाएगी अगर गर्म करेंगे तो। अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर एज कंपेयर टू लैंड धीरे गर्म होता है, स्लोली इट विल हीट अप, ठीक है, एंड स्लोली इट विल कूल डाउन, बहुत ही धीरे ठंडा होगा और बहुत ही धीरे गर्म होगा। अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो दोनों का ही जो हीटिंग रेट है या कूलिंग रेट है एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है ना, इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जब वाटर हीट अप होता है, वाटर किस में कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर्स में। तो वाटर वेपर्स की वजह से भी स्लाइटली फैक्टर है, मेन फैक्टर तो यही है, इसकी वजह से भी आपकी एयर के अंदर मूवमेंट्स आती है कि कुछ ऐसा पोर्शन है जहां पर ज्यादा वाटर वेपर्स है, कुछ एयर का ऐसा पोर्शन है जहां पर वाटर वेपर्स है ही नहीं। तो वाटर वेपर्स हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ट्रेवल करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सेल। सेल क्या बोलता है कि जो आपके मटेरियल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 रीजन है, 2 बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर काफी सारे वाटर वेपर्स हैं और एक के अंदर वाटर वेपर्स है ही नहीं, और दोनों के अंदर एयर है। तो जो वाटर वेपर्स है इट ऑटोमेटिकली मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, ऑटोमेटिकली मूव करते हैं। यानी मूवमेंट तो होगी ना, कुछ हलचल तो पैदा हो गई ना। अगर मूवमेंट हो गई है तो डेफिनेटली एयर भी मूव करेगी। तो ये फैक्टर भी डिसाइड करता है क्या? मूवमेंट ऑफ एयर। बट मेनली डिसाइड करते हैं ये अगर हम सी की बात करते हैं। सो एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पर हम बना देते हैं सी एरिया। ठीक है, ये मैंने सी एरिया बनाया है, दिस इज सी पार्ट। यहां पर वाटर प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, दिस इज सी, दिस इज लैंड एरिया, दिस इज लैंड, दिस इज सी पार्ट। ठीक है, और हम डे की बात कर रहे हैं, अराउंड 10 to 11 AM, 10 सुबह के 10-11 बजे हुए हैं। सन भी प्रेजेंट है यहां पर, दिस इज सन। सन वाटर को भी हीटअप करेगा और सन की रेज लैंड को भी हीटअप करेगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट फैक्टर क्या कहता है? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो सबसे पहले गर्म कौन सा होगा? लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। अगर लैंड
जल्दी हीट अप हो रही है, तो जो लैंड के ऊपर एयर प्रेजेंट है, जो लैंड के ऊपर एयर प्रेजेंट है वो भी जल्दी हीट अप हो जाएगी। और अगर वो जल्दी हीट अप हो जाती है तो एयर अगर हीट हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली इट विल राइजेस अप, ऊपर की तरफ उठ जाती है, इट विल राइजेस अप। तो जो एयर है वो क्या होगा, वार्म होने के बाद इट विल वार्म अप एंड राइज अप इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो यहां पर क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं। अगर ये एयर गर्म हो जाए और गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाती है तो इस पोर्शन को रिप्लेस कौन करेगा, इस पोर्शन को रिप्लेस करेगी इसके बराबर में ही जो एयर प्रेजेंट है सी के ऊपर, क्योंकि वो अभी तक गर्म नहीं हुई है, ये जल्दी गर्म हो गई है, वो अभी तक गर्म नहीं हुई है। तो इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए क्या ये स्पेस खाली रह जाएगा या कुछ भी नहीं होगा। कभी क्या आपके अर्थ में ऐसी कोई जगह है जहां पर एयर ही ना हो, वहां पर वैक्यूम हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एयर को एयर ही रिप्लेस करती है, एयर को एयर ही रिप्लेस करती है। अगर ये हॉट एयर ऊपर की तरफ जल जाती है तो जो ये पोर्शन ब्लैंक हो गया है इस पोर्शन को रिप्लेस करेगी वाटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है, और ये ठंडी होती है, कूल होती है एज कंपेयर टू दिस एयर। तो इसलिए एयर या इस तरफ यानी डायरेक्शन होगी सी टू लैंड, सी टू लैंड एयर मूव्स, दिस इज विंड। तो ऐसी ठंडी हवा चलती है दिन में, ये दिन की बात है, ठीक है। अब नाइट की बात करते हैं, व्हाट विल हैपन इन द नाइट, ये रात में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। ये जल्दी ठंडी भी हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर, लैंड के ऊपर जो एयर है ये कूल रहेगी, क्योंकि लैंड धीरे जल्दी ठंडी हो गई है। शाम के टाइम की बात करते हैं, अराउंड 7 to 8 PM। बट जो सी के ऊपर प्रेजेंट, जो सी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर स्लोली कूल होता है, धीरे धीरे कूल होता है। और धीरे धीरे कूल होगा तो क्या होगा, यानी जो एयर यहां पर प्रेजेंट है वो अभी भी गर्म होगी एज कंपेयर टू दिस एयर। ये अब गर्म नहीं रही है तो ठंडी हो गई है, क्योंकि जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो गई है, ठीक है ना। बट जो एयर वाटर के ऊपर प्रेजेंट है वो अभी भी गर्म है एज कंपेयर टू लैंड। व्हाई, बिकॉज वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन वेरी स्लोली, धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो यहां पर एयर क्या होगी, वार्म, गर्म होगी, और ये ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी। तो इस एरिया कौन रिप्लेस करेगा, ये वाली एयर। यानी नाइट में क्या डायरेक्शन होगी, लैंड टू सी, और कूल एयर जाएगी सी की तरफ। तो ये है मूवमेंट ऑफ एयर। ये हमारा थर्ड सब टॉपिक था एयर का। जो लास्ट सब टॉपिक है हमारे एयर का, दैट इज पोल्यूशन ऑफ एयर, कि एयर के अंदर कैसे पोल्यूशन होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या होती है एयर पोल्यूशन की। सो द लास्ट सब टॉपिक इज एयर पोल्यूशन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? Any undesirable change in the physical, chemical and the biological property of air that causes discomfort or that affects living organism is called air pollution. उसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। यानी अगर किसी भी, अगर हम गैसेस की बात करें, स्पेशली एयर की बात करते हैं, तो अगर एनी चेंज, किस में चेंज हो रहा है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, अगर ये तीनों चेंज होते हैं एयर में तो एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। अगर वो डिस्कंफर्ट क्रिएट करते हैं, किसको, ह्यूमंस को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अगर ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज होते हैं और ऐसा चेंज होने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्क पड़ता है तो ये एक एयर पॉल्यूशन है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट मेक्स द फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल चेंज इन एयर पॉल्यूशन? आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज अ वेरी लीथल एंड डेंजरस गैस, पॉइजनस गैस। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, some dust particles, toxic substances you can say. These are the main components that pollute our air. This is the main components behind to make our air pure air pollute. How can we control? We have a number of methods to control the air pollution, like afforestation, we have to plant more and more trees. Population control, fossil fuels consumption control. These are the main basic methods to control the air pollution. Now what are the effects of air pollution? Air pollution का हमारे ऊपर effects पड़ता क्या है, दोनों डिस्कस कर लेते हैं, हमारे ऊपर भी और नेचर के ऊपर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन नेचर, देन ऑन एनिमल्स, और यू कैन से ह्यूमंस, स्पेशली ह्यूमंस को स्टडी करेंगे।
नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है एयर पॉल्यूशन का? प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। ये नेचर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है एयर पॉल्यूशन का। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, स्पेशली ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूं तो ह्यूमंस पे इफेक्ट पड़ता है हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे, लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे स्किन इरिटेशन होती है। दीज आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नेचर की बात करें तो प्लांट्स पे ठीक है फर्क होता है, एनिमल से फर्क होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं नेचर की कुछ और सब्सटेंस भी है, सिर्फ प्लांट्स ही प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। खुद जैसे एयर, खुद का एटमॉस्फेयर, खुद का इकोसिस्टम, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है एयर पोल्यूशन से। कैसे? लेट्स सी। नंबर 1 एसिड रेन। क्या? एसिड रेन। नंबर 2 ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नंबर 3 ozone layer depletion. These are the main effects of air pollution जो हमारे इकोसिस्टम पे अफेक्ट डालते हैं। एसिड रेन होती है। व्हाट इज एसिड रेन? जब भी आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी एटमॉस्फेयर में। कहां से रिलीज होते हैं? आपके व्हीकल से रिलीज होते हैं, इंडस्ट्री से बनते हैं। तो अगर इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो ये आपके जब रेन होती है तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये वाटर से मिल जाता है प्लस H2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी वाटर से मिल जाता है H2O, और ये क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। कितने डेंजरस एसिड है। आपको एसिड रेन की फॉर्म में एसिड्स मिल रहे होते हैं, तो ऐसी रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं जिसके अंदर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है, ये अफेक्ट करते हैं, आपको अफेक्ट करते हैं, आपके लिविंग जो आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग थिंग्स को भी अफेक्ट करते हैं। ताजमहल मॉन्यूमेंट्स की अगर एग्जांपल ले तो पूरा जो मार्बल का स्टोन है, पत्थर है, वो पीला पड़ गया ड्यू टू द एसिड रेन। नंबर 2 ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अच्छा इफेक्ट है जिसको आपके फार्मर्स यूज करते थे। वो क्या करते थे? एक ग्लास का हाउस होता था, उस ग्लास के हाउस में वो टेम्परेचर को मेंटेन करते थे अपनी वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए ड्यूरिंग विंटर्स में। लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर मैं अर्थ के ऊपर बात करूं तो वहां पर भी इंप्लीमेंट होता है और वहां पर ये अच्छा नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे? देखो, ग्लास क्या करता है? अगर मैं ग्लास की बात करूं, ग्लास लेट्स द लाइट इन और हीट को पास होने के लिए वो अलाउ तो कर देता है, लेकिन जब जाने का टाइम आता है तो वो जाने नहीं देता। क्यों जाने नहीं देता? क्योंकि अंदर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं CO2 गैस की लेयर। आपकी जो कार होती है, अगर आप सर्दियों में गर्मियों में कार को बंद करके बाहर खड़ी कर देते हो और दोबारा अगर उसके अंदर जाते हो तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है कार के अंदर, क्योंकि उसने हीट को ट्रैप कर लिया। हीट को अलाउ तो किया अंदर आने के लिए ग्लास से, लेकिन बाहर नहीं जाने दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंदर गैसेस प्रेजेंट थी। कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी? कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन आजकल इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ एक इसकी फ्रेंड है जिसका नाम है मीथेन गैस, CH4। ये दोनों की दोनों ऐसी गैसेस है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सी गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्या करती हैं? ये अलाउ तो करती हैं हीट को जाने के लिए, बट उसको जब बाद में रिफ्लेक्ट होकर वो वापस जाने लगता है तो उसको जाने नहीं देती हैं, ये ट्रैप कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है ग्रीन हाउस गैसेस CO2, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं आजकल। ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं तो ज्यादा CO2 बनेगी, ज्यादा CO2 बनेगी तो ये लेयर थिक हो गई है, काफी मोटी हो गई है। सन से लाइट आती है, कुछ लाइट तो क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ऊपर ही क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस चली जाती है। कुछ हीट आती है और आपकी अर्थ को गर्म करती है। ऐसी हीट को क्या बोलते हैं हम? इंफ्रारेड रेज। कौन सी होती है? इंफ्रारेड रेज, जो आपको गर्मी देती है। सर्दियों में गर्म लगती है ना, हम धूप में जाते हैं तो गर्मी लगती है, तो इसका मतलब हीट तो आ रही है, आप तक भी आ रही है, आप तक भी आ रही है, इसका मतलब लैंड पे भी जा रही होगी। जो आपके पैरों के नीचे जमीन है वो भी गर्म हो जाती है गर्मियों के अंदर। ये लैंड एब्जॉर्ब करती है हीट को, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको रिफ्लेक्ट भी करती है, अपने से एमिट करती है, रिलीज करती है, और वो हीट ऊपर की तरफ निकलती है। जब वो हीट ऊपर की तरफ जाती है तो वो CO2 लेयर से टच होती है, लेकिन CO2 लेयर इसको जाने नहीं देती यूनिवर्स में, वापस रिफ्लेक्ट कर देती है अर्थ पे। ये अंदर ही ट्रैप होके रह जाती है। इससे क्या होगा? टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होगा। लास्ट 50 ईयर्स में आपके अर्थ का टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है।
जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। गर्म होता जा रहा है। कैसे बच सकते हैं? बहुत ज्यादा ट्रीज यूज करो। ट्रीज ज्यादा होंगे तो सारी की सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी तो गर्मी भी कम हो जाएगी आपकी अर्थ के ऊपर। सो दिस इज ऑल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लेशन। इसको भी डिस्कस करते हैं। ओजोन लेयर का क्या फॉर्मूला होता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या फॉर्मूला है? O3। कहां पर प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। काम क्या है? आपको अल्ट्रा वोलेट रे से बचाती है। ठीक है, अल्ट्रा वोलेट रेज क्या करती हैं? जैसे ही ओजोन लेयर पे आती है तो ओजोन को तोड़ देती है, ओजोन को ब्रेक कर देती है। किस में ब्रेक कर देती है? ऑक्सीजन में। O2+O ब्रेक कर दिया अंडर द एक्शन ऑफ यूवी। लेकिन सिर्फ यूवी तोड़ती ही नहीं है, बनाती भी है। अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन की फॉर्म में ये O2+O को फिर से कंबाइन कर देती है O3 में। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, O3 O2 में ब्रेक होता है और O2+O फिर से O3 में बन जाते हैं अंडर द एक्शन ऑफ यूवी। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है। कैसे? हमने बनाया है CFC। क्या बनाया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करता है? ये O3 को फिर से O2 में ब्रेक कर देता है। CFC अल्ट्रा वॉयलेट तो तोड़ ही रहा था ओजोन को, एक और तोड़ने वाला आ गया, उसका नाम है CFC। जब बनाने वाला एक होगा और तोड़ने वाले दो होंगे तो क्या कोई चीज बनेगी? नहीं बनेगी। वो डे बाय डे टूटती जाएगी। तो ये काम हो रहा है आपके ओजोन लेयर के साथ कि जो CFC है और अल्ट्रा वॉयलेट है वो उसको दिन रात तोड़ रही है और बनाने के लिए सिर्फ अल्ट्रा वॉयलेट है। तो इसीलिए एक होल क्रिएट हो गया है आपके ओजोन में, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर होल। उस होल से यूवी अल्ट्रा वॉयलेट रेज नीचे तक आ रही हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। तो ये आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन था। तो इसीलिए आजकल CFC को बिल्कुल बैन कर दिया है। आप इसकी जगह कुछ अल्टरनेटिव्स यूज करते हैं जो CFC से आपको बचा सकते हैं। CFC कहाँ यूज होता था? आपकी जो शेविंग जेल्स होती हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, आपके AC, उन AC के अंदर यूज होती थी CFC। अब वो बंद कर दी। रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती थी, अब बिल्कुल बंद कर दी है। अब इसके जगह कुछ अल्टरनेटिव्स यूज होते हैं जैसे कि HCFC, वो नुकसान नहीं करते। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ आवर चैप्टर आवर एनवायरनमेंट।